بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اسلام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو ٹیلی فونک گفتگو عوام کے ساتھ کی ہے، اس میں کون سے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ اس سے قبل ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے اور جس میں وزیر اعظم پاکستان کی ٹیم نے جو کارکردگی 3 سال کی ہے اس حوالے سے اس چیز کو دکھایا ہے کہ 3 سال میں وزیر اعظم پاکستان کے طرف سے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں اور ان سے عوام کو کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ساتھی میاں احد محمود رامے صاحب موجود ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بات ہوگی کہ 3 سالہ کارکردگی وزیر اعظم پاکستان کی کیا رہی ہے اور جو ٹیلی فونک گفتگو عوام کے ساتھ ہوئی ہے، وزیر اعظم نے کس حد تک عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں 3 سالہ کارکردگی پی ٹی آئی کی دکھائی گئی ہے اور وہ کیا کارکردگی ہے۔ آئیے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ دوستو، وطن عزیز کی ساری سیاستوں کی کارکردگی ایک طرف اور عمران خان کے 3 سالوں کی کارکردگی ایک طرف، آؤ ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سیاستدانوں کی جائیدادیں ملک سے باہر، عمران خان اپنا اکلوتا فلیٹ باہر سے بیچ کر پاکستان میں گھر بناتا ہے۔ ساری دنیا کی ایجنسیوں نے زور لگا کر معلوم کیا، پتا چلا اس شخص کی پاکستان سے باہر نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی کاروبار۔ سارے سیاستدان کاروباری مفاد کے لیے غیر مسلموں سے ہاتھ ملاتے رہے، ان کی دعوتیں کرتے رہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کو خود دہشت گرد کہتے رہے، اور عمران خان لندن، امریکہ، عرب، ملائیشیا، ایران، افغانستان جا کر پوری دنیا کے سامنے کہتا رہا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی سازش مغرب نے کی ہے۔ بھائی، لوہے کا جگر چاہیے تم کو مغرب میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے کہو کہ تم نے میرے دین کے خلاف سازش کی تھی۔ ہے کسی میں جرت؟ یہ سب سیاستدان عید منانے کے لیے بھی مغرب جاتے تھے۔ یہ شخص 3 سالوں میں کبھی بھی کسی تہوار پر باہر نہیں گیا۔ جشن عید میلاد النبی یوں منایا کہ خاتم النبیین کی شان بیان کرنے، ان کے اسوہ حسنہ کو پوری قوم کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنا دی، جس سے پہلی بار 12 ربیع الاول پر سرکاری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اسمبلیوں میں چراغاں کیا گیا، درود شریف صلوات کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لاہور کو پیرس بنانے والوں نے سود پر ادھار پیسہ لے کر لاہور میں اورنج ٹرین میٹرو بس تو بنا دی، جس کا قرض ہم آئندہ 30 سالوں تک بھی اتارتے رہیں گے، مگر اسی اورنج ٹرین کے آس پاس دور دراز سے آئے لوگ فٹ پاتھ پر سوتے رہے۔ سخت سردی میں بے یار و مددگار بے گھر لوگ ٹھٹھرتے رہے، نہ کوئی سیاستدان آیا ان کے پاس، نہ کسی چیف جسٹس نے نوٹس لیا تھا۔ پھر اسی عمران خان نے وہاں پر پناہ گاہیں بنا دی، مفت کھانا بیت المال سے کھلا رہا ہے، ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور اب کم سے کم کوئی غریب، کوئی پردیسی سخت سردی میں فٹ پاتھ پر نہیں سوتا یا بھوکا نہیں رہتا۔ سیاستدان اپنا علاج لندن میں، امیر اپنا علاج پرائیویٹ اسپتالوں میں کرواتے تھے، اور غریب کو سرکاری اسپتال کے چکر لگانے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جہاں کسی غریب کو معمولی آپریشن کی تاریخ بھی 3 مہینے کی دی جاتی تھی۔ 2 رستے ہوتے تھے غریب کے پاس، یا تو وہ کسی سے لاکھوں روپے ادھار لے، زیور بیچے، گھر بیچے اور پرائیویٹ اسپتال میں جائے، یا پھر 3 ماہ تک سرکاری اسپتال میں باری آنے کا انتظار کرے۔ اور آج اسی عمران خان نے پہلے پختونخوا اور اب پنجاب کے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے سالانہ کی انشورنس مفت کروا دی کہ جاؤ امیر غریب ایک جگہ پر علاج کرواؤ، پیسہ حکومت دے گی۔ کسان کو آڑتی لوٹ لیتے تھے، بیج اور کھاد ادھار دے کر کہتے تھے کہ فصل پوری ہمیں دینا، اور کسان مجبور ہو کر دیتا تھا۔ اونے پونے خرید کر گودام بھر لیتے تھے، نہ گنے کی پوری قیمت دیتے تھے نہ گندم کی۔ اسی عمران خان نے مفت ٹریکٹر تک تقسیم کیے ہیں، کسانوں کو کسان کارڈز بنا کر دیے جس سے سستی کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ حالانکہ تاجر مافیا اتنے ہی زور سے کھاد بلیک میں بیچ رہا ہے تاکہ حکومت کو گندا کر سکے، لیکن حکومت ایک ایک کر کے ان سب کے گوداموں کو سیل کر رہی ہے تاکہ کسان تک کھاد سستی پہنچے اور کسان کسی کی دباؤ میں آ کر اپنی فصل گروی نہ رکھے۔ دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن، دنیا کے سب سے بہادر پائلٹس، دنیا کی سب سے تیز ترین سروس دینے والی پی آئی اے کو سیاستدانوں نے کباڑا کر دیا، اور یہاں تک نہیں چھوڑا بلکہ اس کو بیچنے کی رٹ لگا رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ قومی سٹیل مل مفت دے رہے تھے۔ پی آئی اے کی ملکیت امریکہ میں موجود روزویلٹ ہوٹل گروی رکھ چکے تھے، جس کی نیلامی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ قومی ایئر لائن کی سروس کویت، عراق، یورپ، امریکہ سمیت متعدد ممالک میں بند کی جا چکی تھی کہ پی آئی اے آج بند ہوئی کہ کل۔ اور پھر اسی عمران خان نے پی آئی اے کو قرض کی دلدل سے نکالا، اس کے ہوٹل روز ویلٹ کا سارا قرض اتارا، کویت سمیت تمام ممالک کے لیے ایک ایک کر کے پی آئی اے کو پھر سے چلا دیا۔ اور سنو، اب پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے خطے میں سب سے پہلے جس نے ڈیجیٹل مشینری خریدی ہے اس ملک کا نام پاکستان ہے۔
बैंक गरीब को जूते की नोक पर रखते थे। कर्ज छोड़ो, बिजली का बिल जमा करवाने के लिए भी लंबी लाइनों में लगते थे। कर्ज सिर्फ अमीरों को मिलता था और इसी इमरान खान की बदौलत वो सारे बैंक इस बात पर राजी हो गए कि वो अपना घर स्कीम में गरीबों को बिला सूद कर्ज देंगे। सैमसंग जैसी इंटरनेशनल कंपनी के मोबाइल फोन और टीवी पाकिस्तान में बन रहे, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में तारीख में पहली बार बन रही। सियाहत में पाकिस्तान को नंबर 1 डेस्टिनेशन पर ले आया। स्कर्दू का एयरपोर्ट चला दिया जहां रोजाना हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाह आ जा रहे हैं। पहला वजीर आजम जो 18वीं तरमीम के बावजूद सिंध वालों को भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत वफाकी बजट से दे गया। हिंदुस्तान की छाती पर पांव रखकर डैम बना रहा। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा बना दिया। अफगानिस्तान और अमेरिका की 20 साल से चल रही जंग खत्म करवा दी। परदेशियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोलने की सहूलत दे दी। नादरा के बाहर लगी लंबी लाइनें खत्म कर दी। किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के तर्ज के दफातर बना दिए जहां औरतों मर्दों के लिए अलहदा इंतजार गाहें, एयर कंडीशन की सहूलत। नए दरख्त लगाना तो दूर, यहां हजारों दरख्तों के रोजाना काटने की खबरें चलती थी। वहां आज करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब दरख्त लगा रहे हैं, जिससे दुनिया पाकिस्तान को शाबाश दे रही है। और जो पाकिस्तान 3 साल पहले तक सिफारती महाज पर अकेला हो चुका था, उसी पाकिस्तान की एक आवाज पर 56 ममालिक के सरबराहान OIC का इजलास अटेंड करने पाकिस्तान आ गए। आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 सालों में हुई। आज तक की सबसे ज्यादा रेमिटेंस इन 3 सालों में आई। आज तक की सबसे ज्यादा तेज इंडस्ट्री इन 3 सालों में शुरू हुई। अब मुझे बताओ कि मैं इमरान खान को किस चीज के लिए ब्लेम करूं? अमीर गरीब को एक निसाब देने के लिए, परदेशियों को वोट डालने का हक देने के लिए, किसान को फसल का पूरा मुआवजा देने के लिए, अरबों से अपने परदेशियों से बराबरी का सलूक करने की दरख्वास्तें करने के लिए, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए, मोदी को साड़ियां और आम भेजने की बजाय रिटेलिएशन की धमकी देने के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हम लड़ेंगे का नारा लगाने पर, गरीब अमीर का एक जैसा इलाज करवाने पर, जखीरा अंदाजों के खिलाफ तहरीक चलाने पर, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट को रोकने पर, पुलिस को अवाम दोस्त बनाने पर, सहाफियों को झूठ बोलने पर सजा देने पर, किस चीज पर मैं ब्लेम करूं उसे? भाइयों, कोरोना के बावजूद इस शख्स ने अल्लाह की मदद से 70 साला पाकिस्तान की तारीख के मुकाबले में वो काम किए हैं कि अल्लाह की कसम मुझे अब इस पर कोई शक नहीं कि इस शख्स के साथ अल्लाह की तरफ से खास रहमत है। वरना 56 ममालिक में वाहिद एटमी ताकत, सरहदों पर दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलकर जाता कहां? अगर किसी को मेरे बताए गए एक भी लफ्ज पर शक हो तो अपने सोर्सेज से चेक करना। एक एक लफ्ज सच निकलेगा, एक एक बात हकीकत निकलेगी। और आज पहली बार मैं पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान को भी जिंदाबाद कहता हूं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है। इसमें पीटीआई की तरफ से जो 3 साल कारकर्दगी थी उसको दिखाया गया है कि 3 साल में पीटीआई ने क्या इकदाम किए हैं। लेकिन बेशुमार मसाइल जो हैं उनका जिक्र इस वीडियो में नहीं किया गया। वो क्या मसाइल थे? जब टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ अवाम की, तो उसमें अवाम ने एक इशू बहुत ज्यादा उठाया है, वो महंगाई का इशू है। आज हम अपने मेहमान जनाब मियां अहद महमूद रामे साहब से इस हवाले से बात करेंगे कि इन 3 सालों में पीटीआई ने क्या डिलीवर किया है और अवाम किस हद तक जो है वो पीटीआई से मुतमिन है। मियां साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू आपने सुनी और वो जो सवालात लिए गए उस हवाले से भी आपके इल्म में है। महंगाई का एक इशू जो है वो बहुत ज्यादा सामने आया है। इस हवाले से क्या पीटीआई मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुई इस चीज को कंट्रोल करने में, हमें महंगाई को? जी बेशक। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने बर्निंग इशू के ऊपर मुझे आज यहाँ पे बुलाया है, दावत दी है। सब गुजारिश ये है कि आप पीटीआई की थोड़ी सी तारीख में हम अगर जाएं, आज से 4 साल पहले जो ये एजेंडा लेके आए थे, जो ये प्रोग्राम लेके आए थे, जो तब्दीली का नारा लेके आए थे, उसको ज़रा आप जहन में रखें और वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर इनकी तकरीरों को आप जहन में रखें। वो वीडियोस मौजूद है, मीडिया के पास सारा कुछ मौजूद है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक सिंगल एजेंडा था इनका, करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन है। 3 साल 3.5 साल ये पिछली हुकूमतों को रगड़ा देते रहे जी पाकिस्तान में इन्होंने करप्शन किया, हम करप्शन को खत्म करेंगे। अब करप्शन की पहले बात कर लें। आज ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान का नंबर
124 سے 140वें नंबर पे चला गया। 16 दर्जे पाकिस्तान ने तरक्की की है, तनज़्ज़ुली नहीं हुई है। तनज़्ज़ुली इस हवाले से हुई है कि पाकिस्तान अब 140वें नंबर पे आ गया है करप्शन के हवाले से, यानी उसमें इजाफा हुआ है। करप्शन में कमी नहीं हुई है। आज ये रिपोर्ट ये जो आज है ये वो रिपोर्ट आई है, मंजरे ये आम पे मेरी आई नहीं है। है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अब इसको वो अंडू करेंगे, वो कहेंगे, वो नहीं मानेंगे उनके मशीर जो उनके गवर्नमेंट में जो लोग हैं। जहां तक बात है महंगाई की, ये इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं पेट्रोल को 45 रुपए पे लेके आऊंगा और जो जरूरियात जिंदगी हैं वो लोगों को मिलेंगी, अर्जा रेखों पे मिलेंगी। अब आप जरा देखिए कि एक ज़राई मुल्क है, हम गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम फ्रूट बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये अलमिया पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक ज़राई मुल्क हो और ज़रूरियात ज़िंदगी बाहर से इम्पोर्ट करे, बाहर से मंगवाए और इतने महंगे रेटों के ऊपर। अब तो लोगों को अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई का तो ये आलम है। ठीक है जी। अब इनके जो वादे थे कि जी मैं 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लोग लाइनों में लग के पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करें, कहाँ गए वो सबज बाग जो उन्होंने दिखाए थे। और जो तकरीर उन्होंने की है वो एक सियासी वर्कर होने के नाते, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि एक मायूस, हारे हुए, शिकस्त खुर्दा वजीर आजम की ये तकरीर थी, ये प्रोग्राम था, ये टेलीफोन खिताब था। कभी ये भी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर, शिस्त के ऊपर बैठ के एक प्राइम मिनिस्टर ये धमकी दे कि अगर मुझे निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हूँगा। भाई आपके पास सारी ताकत है, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, इदारे आपके ताबे है, FIA आपके ताबे है, अदलिया आपके साथ इस हद तक है कि आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं आपको वो रूम दे रहे हैं, फौज, एस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारे। इससे ज्यादा फेवरेबल हालात क्या हो सकते हैं? किसी भी गवर्नमेंट को माजी में इतने अच्छे हालात नहीं मिले हैं जो इस मौजूदा वजीर आजम को, इस गवर्नमेंट को मिले हैं। लेकिन डिलीवर उन्होंने किया गया। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दे कि जो जिसका ये क्रेडिट ले सकें। अब अगर हम पिछली हुकूमतों की बात करें, उनके क्रेडिट पे क्या, उनके क्रेडिट पे CPEC है, उनके क्रेडिट के ऊपर एटम बम है, उनके क्रेडिट के ऊपर मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उनके क्रेडिट के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ी वो लॉट है जिसके ऊपर ये इतराते फिरते हैं। वो तो पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब का दौर था जब उन्होंने ये सारा किया। उसके बाद आज मेगा पाकिस्तान में मोटरवेज का जो जाल बिछाया गया वो नवाज शरीफ ने बिछाया, पीपल्स पार्टी बिछाया, और ईरान से गैस पाइपलाइन। आज पाकिस्तान पूरा ये चीख रहा है कि हमारे पास गैस नहीं है। नहीं, ये सब एक अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे इमरान खान, कि एहसाब होगा और जो लूटी हुई दौलत है जी जी वो वापस लाई जाएगी। इन 3 सालों में क्या एक सिंगल पेनी भी किसी से हुकूमत ने वसूल की है? और दूसरा, एक चूंकि तहरीक इंसाफ का नाम, जो जमात का नाम है वो तहरीक इंसाफ है, आज तक जो पुलिस का सिस्टम है उस हवाले से 3 साल में क्या बेहतरी आई है? नजर तो ये आता है कि आज भी लोग FIR दर्ज करवाने के लिए दर बदर फिरते हैं, उनके जो मामलात इंसाफ के हैं वो इसी तरह दगरगू हैं जैसे पहले थे। तो क्या डिलीवर किया इस हवाले से? ये 2 पॉइंटों पे, एक अकाउंटेबिलिटी के और ये एक इंसाफ के हवाले से। अकाउंटेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है ना जी, पाकिस्तान में एक पहले भी बना था इदारा जिसमें सैफ रहमान साहब को अपॉइंट किया गया था। ठीक है जी। उसके बाद ये साहब आ गए, एहतसाब का नारा लगा के आ गए। अब ये रिपोर्टें हैं, रिकॉर्ड की बात है कि ब्रॉड शीट जैसा एक इदारा जो फेक इदारा खड़ा किया गया, जिसमें यही एहतसाब के जो उनके मशीर थे, ये सुनने में आ रहा है कि ये उस ब्रॉड शीट कंपनी के साइलेंट पार्टनर हैं। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर जुर्माने के तौर पे दिया है जो इन्होंने एहतसाब के नाम पे झूठे केस बनाए थे। एक पैनी बता दें, कोई एक केस बता दें जो इन्होंने मैच्योर किया हो और रिकवरी की हो, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, सियासी इनके मुखालफिन से, या उन लोगों से
बल्कि पार्लिमान की जो कमेटी है उन्होंने बुलाया था चेयरमैन नैब को कि जी आप हमें तफसील बताएं। आप कहते हैं कि हमने इतने अरब रुपया हमने रिकवर किया, वो पैसा कहाँ है? वो पैसे का नहीं पता शाह साहब। तोहफा तमाशा ये है कि हमारे टैक्सेस का पैसा वो ब्रॉडशीट को बतौर जुर्माना अदा किया, बजाय इसके रिकवर करने के वो $1 पाकिस्तान को देना पड़ा। ये उल्टा मामला है। और यहाँ तक है पुलिस का निज़ाम, ये खड़े होकर तकरीरें किया करते थे कि मैं पुलिस का निज़ाम ऐसा लेके आऊँगा कि आपको इंसाफ आपके दरवाजे के ऊपर, दहलीज के ऊपर मिलेगा। अब आलम यह है कि जो काम थाने में 10,000 में होता था वो 1 लाख में हो रहा है। यानी वही हालात हैं, वो हालात नहीं बदले हैं पाकिस्तान में। गरीब आदमी के लिए इंसाफ का हसूल वो तो एक ख्वाब बन के रहे। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट दुरुस्ती साबित हुई है। बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है जी, वो हम तो नहीं कह रहे। ये वही ट्रांसपेरेंसी है जिसकी मिसालें दे दे कर ये कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है, फलाने ने करप्शन की है, फलाने करप्शन की है। अब उसी को ये मानेंगे नहीं क्योंकि ये इनके खिलाफ है। अब ये करे अगर, ठीक है जी, तो वो दुरुस्त है। दूसरा कोई करे तो वो मोटे इल्जाम ठहराया जाता है। अब इनसे कोई पूछे कि भाई आपने जो इतना हाँ, एक और बात जो बीच में रह गई, ज़िमनन ये फरमा रहे थे कि 24,000 अरब डॉलर कर्जा दिया गया पाकिस्तान के लिए। आज की रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो 54,000 अरब डॉलर हो गया 3 साल के अंदर। वो 70 सालों में 24,000 डॉलर तक गया था। आपके कहने का मकसद ये है कि हुकूमत तमाम पहलुओं पे अभी तक नाकाम है और जो इन्होंने वादे किए वो इन्होंने मुकम्मल नहीं किए, उनको पूरा नहीं किया। जी बिल्कुल, ये सिर्फ इंटरनली मामला की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे तो वो बिल्कुल नाकाम हो गई है ये गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ देने में। वो सेहत का शोबा हो, वो हेल्थ इसका एजुकेशन का शोबा हो, वो डेवलपमेंट का शोबा हो। और डेवलपमेंट के जो फंड है उसमें कट लगाया गया है, 30 अरब डॉलर का उसमें कट लगाया गया है। कोई सड़क नहीं बनी। नहीं ये साहब, वो इमरान खान साहब ने तो कहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर जो है, अगले 5 साल भी उनके हैं भाई। वो की कौन सी बुनियाद है? किस बुनियाद के ऊपर? कोई एक काम बता दें, कोई एक काम बता दें कि जो इन्होंने अवाम के लिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के लिए किया हो। कोई एक काम बता दें। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मुदल्लल तरीके से हमारे व्यूवर्स को सारी सूरत हाल बताई है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो टेलीफोनी गुफ्तगू अवाम से की है वो एक ऐसा पहलू था जिसमें एक राय आमा डेवलप हुई है कि वो तकरीर जो है और वो जवाबात जो दिए गए हैं वो मायूस कुन हैं। अवाम उनसे हरगिज़ मुतमिन नहीं। महंगाई के हवाले से जो इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये एक बैरूनी लहर है महंगाई की जो पूरी दुनिया में है और वो लहर पाकिस्तान में आई है, इससे ये जवाब जो था वो पाकिस्तान की अवाम को मुतमिन नहीं कर सका। नाज़रीन, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।